شاعر بننے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہمارے پاس آج شاعر بیٹھے ہیں بڑے بڑے، ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کیسے شاعر بنے۔ تو اپنے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ ہمیں جوائن کر چکے لاہور اسٹوڈیو میں بینا گوندی صاحبہ، ادیبہ ہیں، مصنفہ ہیں۔ بہت شکریہ بینا صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ڈاکٹر اختر شمار، معروف شاعر ہیں آپ بھی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر شمار آپ کے وقت کا۔ اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں حماد احمد، معروف شاعر ہیں آپ بھی، بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا بھی۔ اچھا حماد صاحب بتائیے گا کیا محرکات ہوتے ہیں کہ شاعر بن جاتا ہے انسان؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو فن کی صلاحیت ہے یہ خدا داد ہے، اور اس کے بعد جب انسان کو خدا ودیت کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو وہاں سے اس کا وائج آف ڈسکوری شروع ہوتا ہے، دریافت کا سفر۔ اب اس نے دریافت کرنا ہے کہ اس کو کون سا فن عطا ہوا ہے۔ سو مجھ سے ایک دفعہ ایک مارننگ شو میں اسی طرح پوچھا گیا کہ آپ ڈانسر کیوں نہیں ہیں، آپ شاعر ہی کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ آپ مصور کیوں نہیں ہیں، آپ اداکار کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ اینڈ لٹرلی ایوری تھنگ ان آرڈر ٹو ڈسکور مائی سیلف۔ تو ان دا وائج آف ڈسکوری اوبویسلی ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ان سچویشن میں ڈالتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے مصوری کرنے کی کوشش کی، فیل ہو گیا۔ اداکاری کرنے کی کوشش کی، خود پہ ہنسی آنا شروع ہو گئی۔ اور گلوکاری کرنے کی کوشش کی تو میں خود بھی نہیں سن پایا، کچھ دوسرے لوگوں نے سننا تھا۔ بٹ when I started writing poetry تو I took my poetry to my first of all obviously siblings and then to my parents۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ تم نے لکھا ہے۔ تو اس سے ایک سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ سا، انیشیل سرٹیفکیٹ، وہ گھر سے ہی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے حلقہ ارباب ذوق میں آ کے جیسے اساتذہ ہیں ہمارے ساتھ، تو ان لوگوں سے سیکھنا شروع کیا۔ تو آئی ڈسکورڈ مائی سیلف کہ یہ میرے اندر اور کوئی صلاحیت نہیں ہے، فن ہے۔ کیونکہ اس کی نشانی یہ تھی کہ اب وہ کہتے ہیں نا وہ کہ ایک ہوتا ہے وہ بینا گوئندی اس کو سیکنڈ کریں گے، ایک ہوتا ہے آرٹسٹک ایکسپریشن، ایک ہوتا ہے جنرل ایکسپریشن۔ تو آرٹسٹک ایکسپریشن مختلف ہے، جنرل ایکسپریشن مختلف ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی ڈاکو کو دیکھ کے ڈر جائے گا، یہ اس کا جنرل ایکسپریشن ہے۔ لیکن جو فنکار ہے وہ اس کو ڈرے گا اور اس کے بعد چیخ نہیں مارے گا، شاید اگلے دن وہ ایک بھیانک تصویر بنا ڈالے، ایک پرسوز نظم کہہ ڈالے، کوئی بہت اچھی دھن بنا دے۔ تو یہ ہے آرٹسٹک ایکسپریشن۔ تو مجھے یہ ضرور محسوس ہوتا تھا کہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ عام جو جنرل جو نارمل ایکسپریشن ہے وہ نہیں ہے، کامن ایکسپریشن نہیں ہے، یہ آرٹسٹک ہے، اس کو وے آؤٹ چاہیے۔ اس کے لیے میں نے مختلف ڈسکوری کا وہ سفر شروع کیا۔ تو فائنلی مجھے پتا چل گیا کہ یہ وہ کام ہے جو میں کر سکتا ہوں اور ڈھنگ سے کر سکتا ہوں۔ لہر اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ لہر مسئلے کی صورت میں آتی ہے۔ زبردست۔ اچھا بینا صاحبہ، جس طرح سے دیکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل ٹوٹ گیا تو شاعر بن گیا، اس بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ یہ اقرا، یہ آج آپ نے بڑا خوبصورت موضوع لیا۔ آپ کے ہمیشہ موضوع اچھے ہوتے ہیں، لیکن شاعر اور شاعری اس میں دو اس کے میرے خیال میں اس کے اگر ہم ویسے جنرلی بات کریں تو دو اس کے ارکان بنتے ہیں میرے انداز سے، کہ ایک تو آپ ہر شخص حساس ہوتا ہے، لیکن اس کی گریوٹی کتنی حساس ہونے کی، اب کتنا محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہو، آپ کے ماحول میں، آپ کے ایٹماسفیئر میں، اپنے انوائرمنٹ میں، مطلب ماحول اور انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر، ان تینوں چیزوں میں فرق ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے مطلب لیونگ اور نان لیونگ کے ساتھ بھی اگر کوئی بھی چیز آپ بیلنس کے خلاف دیکھ رہے ہیں یا رویوں میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو کہ بالکل نیچرل وے سے ہے، نہیں ہونا نہیں چاہیے آپ کے اندازے کے مطابق، چونکہ گریوٹی آپ نے خود سیٹ کرنی ہے، اس میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جو حساسیت اور جذبات اور اس کے ساتھ جو آپ کے اندر کا ایک فیلنگ ہے نا، وہ آپ نکالتے ہیں۔ یا تو آپ کسی، اگر آپ پینٹر ہیں جیسے حماد نے بتایا تو پھر آپ پینٹنگ کر لیتے ہیں، اگر مطلب آپ نے اظہار کا ایک طریقہ ہے تو اس میں میرے خیال میں رائٹر جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنی پین کو برداشت کر کے لکھتا ہے، چونکہ وہ دیکھیں وہ بہت پین میں ہوتا ہے، لیکن رائٹنگ میں اور اسپیشلی پھر پوئٹری میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو لائک یو نو لائک آپ ایسے ہی نہیں عام بات کر دیتے، اس میں آپ کو 3-4 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کا، دوسرے لوگوں کا بھی دل نہ ٹوٹے اور پیغام بھی پہنچ جائے، یعنی ابلاغ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں آپ اس چیز کا مطلب اثر بھی ہو، اور پھر دوسرے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو احساس بھی ہو اور ان کو شرمندگی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں
में उसकी रिकवरी भी हो, यानी ये सारी चीज़ों को करने का नाम शायरी है। और उसमें खूबसूरत चीज़ ये है जो मैं समझती हूँ कि उसकी एक लफाजी बिल्कुल आम हो, वो जिस बहर में मर्जी हो, वो जिस मतलब उसमें औज़ान, आपको पता है कि हम, ये तो मेरे पुराने अख्तर शुमार साहब तो मेरे पुराने दोस्त हैं, और इसलिए मैं समझती हूँ हम एक किस्म, मतलब हम भी यार हम असर टू, क्योंकि हम लोग जिस ज़माने में हम शायरी किया करते थे, हम सीखते थे, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था। मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन मेरी पोइट्री की किताब MSc के फ़ौरन मतलब उसमें आ गई, लेकिन अब ये कि मैं उर्दू में आ गई, और फिर मुझे तो शायद उस ज़माने तक उर्दू आ गई थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इजहार बहुत ज़रूरी है, ख्याल होना और उसके बाद उसका टूटना, ये वाकई इसमें बात है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सोज नहीं होगा, अच्छा, आपके अंदर दर्द नहीं होगा, आप लिख नहीं सकते। आपने कहा दर्द नहीं होगा तो लिख नहीं सकते, लेकिन आपको शेर की आमद होती कब है? देखें, मुझे तो कभी भी हो जाती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर आप किस तरह का चाहेंगी ना, जिस तरह आपने कहा ना कि माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ा मैटर करता है, अभी तो ये किस तरह का? ये मैं समझती हूँ, शायरी को दिल लगी, मेरी नज़म है शेर के अंदर, कभी शायरी को दिल लगी कहते रहो, जितना चाहो मुझे दुख देते रहो, लेकिन मेरा कहना मानना, शेर के अंदर कभी मत झांकना। तो वो जो शेर के अंदर झांकना, ये मेरी शुरू की शायरी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारे खुद भी हम इवॉल्व होते हैं, और फिर हम कुछ चीज़ें तो माशरती तौर पे हमें असर करती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अच्छा, फिर मज़े की बात ये कि आप ये पेशखेमा भी कर सकते हैं शायरी में, मतलब देखिए पेशीन गोई भी करता है शायर कि ये होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक वो दर्द होता है, वो प्योर होता है, जो वाकई मैं आपको बताऊं, औज़ान की बात और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन जो प्योरिटी का होना, सच्चा होना, ये ज़रूरी है किसी भी फनकार के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मौसीकी, जैसे कहते हैं रूह की ग़ज़ा तो है, लेकिन मौसीकी जो है उसके साथ आप यकीन माने कि उसके साथ लोगों के आहंग बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में तो मौसीकी भी लोग मतलब उसे इतनी सलीका सीखते थे और सब कुछ सीखते थे कि वुज़ू करके बैठ के मौसीकी को सुना करते थे, और आजकल तो हम शायरी को तो उससे भी ऊंचा मुकाम लेते थे। डॉक्टर शुमार साहब से पूछ रहे हैं कि वो जिस तरह से शायर हैं, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, तो उन्होंने शायरी किस तरह से, एक तो उन्होंने वो कही, और शायर क्या बनने के लिए ज़रूरी है, ये जो मैंने बात कह दी पहले कि भाई दिल टूटना ज़रूरी है, ऐसी कोई आपके साथ भी सिचुएशन है? असल में बात ये है कि दिल तो हर आदमी का टूट सकता है, तो वो क्यों नहीं शायर बनता? सवाल बनता है, क्योंकि इंसान है ना, फितरी तौर पर उसका कहीं ना कहीं कोई मसला ऐसा होगा कि वो दिल आज़ारी होगी, दिल टूटेगा, रोएगा भी सी, लेकिन शायर एक मतलब एक वदीयत है ना, शायरी अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे। तो ये जैसे कहा गया कि हसासियत का वो दर्जा होता है कि जिसमें जाकर आदमी अपने एक्सप्रेशन जो है वो कागज़ पर ले आता है, यानी जज्बात के इजहार का बयान जो है वो शायरी है। तो वो जितना हसास आदमी होता है, जितना वो गहराई से देखता है, उस दर्द को महसूस करता है या जुदाई को महसूस करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो उतना बड़ा शायर होता है। तो मेरा ख्याल है कि दिल टूटने से इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दिल टूटने से नहीं है, लेकिन आजकल जो शायर हैं दिल टूटते तो वो शायरी कहना शुरू कर देते हैं। कुलिया नहीं करार दिया जा सकता। बाकी हमें अमूमन ये सवाल किया जाता है कि जी आपने शायरी क्यों शुरू की, किसी से मोहब्बत हुई, दिल टूटा, तो ये एक मतलब इसमें भी सदाकत हो सकती है, लेकिन अच्छा कितनी सदाकत है वैसे इस बात में? नहीं, मतलब है कि इसमें आपने कहा सदाकत हो सकती है। जी जी, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से मुतासर होता है, कोई चेहरा हो सकता है, कोई आंखें हो सकती हैं, कोई मंजर हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। चलें, अच्छा आज बता दें हमें, आपने किससे मुतासर होकर शायरी कहना शुरू की? देखें जी, मैं तो जब 10वीं क्लास में थे हम, तो मेरी सारी क्लास जो थी उन्होंने अपने तखल्लुस रखे हुए थे, सिर्फ मेरा नहीं था। अच्छा। आज उनमें से कोई शायर नहीं है, सिर्फ मैं शायर हूँ। तो उस वक्त तो मोहब्बत का यानी एक और दर्जा होता है, तो मुझे वो मैं हैरान होता था कि यार आप ये क्या लिखते रहते हैं ये वो। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि दिल की बातें जो हैं वो ज़ुबान से फिर कागज़ तक आ गई, तो फिर वो एक नज़्म मैंने उस ज़माने में लिखी थी, उसमें भी उसका मतलब है कि वो मेरे किसी मजमूए में दूसरे तीसरे में शामिल है। 2-3 शेर मैं आपको सुना देता हूं। ज़रूर ज़रूर। कि काश मैं तेरा कमरा होता। अच्छा, अब उसमें एक कसक आप देखिए कि क्या क्या मतलब है कि उसमें उसकी पहलू कितने हैं उसमें। काश मैं तेरा कमरा होता और तू बरसों मुझ में रहता, और मैं सदियों तेरे कुर्ब में गुमसुम रहता। काश मैं एक आईना होता
और तू बेबाकाना पैरों मेरे सामने बैठा रहता और मैं तुझ में खोया रहता। वाह वाह। काश मैं तेरा रोजाना का रास्ता होता और तुझे मैं आते जाते देखता रहता। तेरे पाँव का लम्स मुझे पागल कर देता। काश कभी मैं खुशबू होता और तेरी सांसों में रच के तेरी नस नस में बस जाता, लेकिन काश। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे। ये उस दौर की इब्तदाई लाइनें हैं। तो आदमी जो है अपने जज्बात का इजहार किसी न किसी सूरत में आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया। वैसे अहमद हमाद साहब, जिस तरह से अख्तर शुमार साहब ने तो बताया जी शायरी करके दिखाई, हमें बातें तो क्योंकि चल रही हैं तो आप भी कोई शायरी सुना दें, क्योंकि शायरी चल रही है तो चलें जी पेश करता हूँ। उससे पहले मैं एक डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूँगा। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर है, बाज अदा आवाज़ सुरीली लगदा शेर अलूना दुध अंदर जे खंड रलाइए मिठा हुंदा दूना। आप अगर अच्छे तरीके से शेर नहीं सुनाएंगे तो नमकीन रह जाएगा। आप अगर अच्छे तरीके से सुनाएंगे तो ऐसे ही है जैसे दूध तो पहले ही थोड़ा सा मीठा होता है, उसमें मजीद मीठा डाल दें। तो शायरी में रस, शायरी में मीठा उस वक्त पड़ता है जब दिल टूटता है। शायर का दिल टूटता है, शायर का दिल टूटना चाहिए। उसके दो लेवल्स हैं, उसके दो लेवल्स हैं। मीर का दिल टूटा, उसने अपने आप को फर्द महसूस किया और पूरी इंसानियत की पिक्चर अपने अंदर देख के उसका कर्ब बयान किया। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अच्छा, ये जब इकबाल तक कई बात, तो इकबाल ने वही जो उसका दिल टूटना था अपनी इनफरादी सतह पे, उस इनफरादी सतह पे दिल के टूटने को उन्होंने उतनी लिफ्ट नहीं कराई, यूँ कहना चाहिए, बल्कि कौम पीछे रह गई उनकी जिससे वो मोहब्बत करते थे। वो नज़रिया दुनिया में ताकतवर होने के बावजूद कहीं मगलूब हो गया था, इससे उसका दिल टूटा और उस टूटे हुए दिल ने इकबाल को इकबाल बनाया। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल दिल टूटना जरूरी है, क्योंकि इससे दूध दूना मीठा हो जाता है। जी हाँ, तो आपका हुक्म है तो मैं दो चार शेर आपकी खिदमत में डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से। अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता, तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता, तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता, सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर सकता, सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूँ, यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर सकता। जहल की जंग में, ये हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कि जहल की जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, जहल की जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, तू अगर लफ्ज़ को तलवार नहीं कर सकता, तू अगर लफ्ज़ को तलवार नहीं कर सकता। और जिस तरह मैंने ज़माना भी तेरी नज़र किया, जिस तरह मैंने ज़माना भी तेरी नज़र किया, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर सकता, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर सकता, अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। वैसे डॉक्टर अख्तर शुमार साहब, जिस तरह से आपने कहा ना कि काश आपकी शायरी में है काश, तो ये काश भी इंसान को शायरी की तरफ ले जाता है। ज़ाहिर है एक हसरत, एक कसक और एक मतलब है कि वो शायर को उस तरफ ले जाती है और इस तरह के अल्फाज जो है वो सामने आते हैं। तो शायरी के लिए कोई बाकायदा कुलिया नहीं है, बात वही है हसासियत की और वदीयत की। ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे। जैसे मैंने कहा कि हर दिल टूटने वाले को मतलब है शायर तो नहीं होता ना वो, लेकिन ये उसको मतलब है कि दो चंद कर देती है। यानी अगर दर्द और सोज और शायरी में ना हो तो फिर वो ज़रा फीकी और बेरस सी होती है। जब तक नमक या रस या मिठास ना हो, और ये सारी चीज़ें उस दर्द से पैदा होती हैं और ये कुदरत की देन है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या बात करना चाहेंगे? चलो, बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, तो आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगे?
मैं शेर सुनाऊंगा, लेकिन इस्लामी शेर सुना देता हूँ आपको। जी जी ज़रूर। वो कौन सा गुल है मौला जिस गुल में खुशबू नहीं, कौन सा दिल है मौला जिस दिल में तू नहीं। वाह वाह बहुत सुभान अच्छा। अल्लाह, ज़बरदस्त जी। बीना साहिबा, जिस तरह से अब तो माहौल बना है, हमारे कॉलर्स भी कह रहे हैं बड़ा माहौल बना हुआ है, तो उस माहौल में मेरा ख्याल है आप भी थोड़े से शायरी सुना दें। पहले मैं शायरी तो मैं सुनाती हूँ, एक शेर मैंने बल्कि अभी वो जैसे कह रहे हैं कि दिल टूटने की बात, तो दिल देखें खाली मोहब्बत जो है हम हर जज्बों से करते हैं, हमारे अपनों से जब हमारे दिल टूटते हैं तो वो बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो उसके लिए मतलब उससे बड़ी पेन कोई नहीं, जिनको हम अपना कहते हैं उनसे दिल टूटता है। एक तो होता है ना हम किसी को अपना बनाने के लिए दिल टूटना एक अलग बात है। तो उसमें मैं एक गज़ल थी, उसका एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो, अपनों ने जो गहरे ज़ख्म लगाए हैं, वाह, अपनों ने जो गहरे ज़ख्म लगाए हैं, खून ने मेरी आंख से बहना सीखा। वाह, अपनों ने जो गहरे जख्म लगाए हैं, खून ने मेरी आंख से बहना सीख लिया। अब कहने का मतलब है कि वो जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, वो अगर हमारे से नज़र चुरा लें या कुछ कर लें तो उनको मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग हम सबको आपस में करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा रवैया, और शायरी की ज़ुबान में आप बहुत कुछ समझा सकते हैं जो किसी और ज़बान में, और समझ भी बड़ी जल्दी से आता है, बड़े नरमी के साथ आता है। और इसी में मैं एक नज़म अपनी मैं आपसे नज़म सुनूंगी, लेकिन एक कॉलर ले लूं जी पहले। जरूर जरूर। एक कॉलर है हमारे साथ जी, मोहम्मद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहम्मद नवाज साहब, क्या बात करना चाहेंगे? मैं जी अपना शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी सुनाए। ये ज़ौक़ फ़कत ज़िक्र हवादिस की नहीं है, शेर अक्ल दिल के इज़्तिराब की ज़िबाइश। बहुत अच्छा। वाह जी वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। शेर हर कोई, अब हमारे कॉलर भी है, माहौल क्योंकि बना ना तो हर कोई शेर सुना रहा है। एक और कॉलर है रजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रजा, क्या बात करना चाहेंगे आप? कोई शेर सुनाना चाहेंगे? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। इकरा, आपका क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़ा सेटिंग किया हुआ सारा, और शायरों को बिठाया हुआ। मेरा एक शेर इनको सुना दे। जी जी सुनाए। जो पंजाबी का शेर है, ना माल नाल जिंदगी ना बाल नाल जिंदगी। सही। ये सुने और थोड़ा सा इस पर तबसरा कर दे। जी जी। ना माल नाल जिंदगी ना बाल नाल जिंदगी, ना मापियां दे नाल ते ना जाल नाल जिंदगी। जी जी जबरदस्त, जबरदस्त जी। रजा साहब शेर सुना रहे थे तो कह रहे थोड़ा सा तबसरा भी हो जाना चाहिए उनके शेर के ऊपर। तबसरा तो शुमार साहब भी कर सकते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जो शेर अपना पढ़े या किसी का पढ़े, देखिए ज़रूरी नहीं है, अगर जो कोई शायर नहीं है वो जब किसी का भी शेर पढ़ता है, एक्चुअली तख्लीक की तो अपनी पहचान होती है, शनाख्त उसकी अपनी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि तख्लीक जो है वो अपनी शनाख्त बनाती है, और वो ज़रूरी नहीं कि वो इस उम्र में, वो कभी भी कुछ ऐसे शेर होते हैं जो कि सदियों सदियों लोग पढ़ते हैं और वो उसको हर मौके पे इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मौके। तो वो एक वो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स शायर हो जिसका दिल टूटे वो उस शेर को इस्तेमाल भी कर सकता है। मुझे भी याद आया कि मुझे भी, मैंने हालांकि मैं मुशायरों में इतना, हम नज़म पढ़ने का इतना नहीं, लेकिन आज आपके इस प्रोग्राम से मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। माहौल बना है ना, तो फिर आप इस माहौल का फ़ायदा उठाएं। तो फ़ायदा उठा रही हूँ। एक मेरी नज़म है साहिल लम्हा, और ये है, खैर इतना तो जान लिया, खैर इतना तो जान लिया, जीवन नैया आज नहीं तो कल डूबेगी। खैर इतना तो जान लिया, जीवन नैया आज नहीं तो कल डूबेगी, लेकिन वो कैसे डूबेगी? शायद तब जब मेरे आंसू सूख के रेजा हो जाएंगे, शायद तब जब मेरे आंसू सूख के रेजा हो जाएंगे, लेकिन सूखे सहराओं में नैया डूब नहीं पाएगी, लेकिन सूखे सहराओं में नैया डूब नहीं पाएगी। शायद तब जब आंखों में अश्कों के, शायद तब जब आंखों में अश्कों के सागर लहराएंगे, और वो लम्हा साहिल होगा, जीवन भर का हासिल होगा। तो बात ये कि महरूमी के सर्द किनारे लहर लहर में बल्क आएंगे, और वो लम्हा साहिल होगा, जीवन भर का हासिल होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टीनेजर थी जब मेरी ये पहली किताब में मेरी ये नज़म आई, अब मैं सोचती हूँ कि तब भी मैं इतना सोचती थी। अब ये कहने का मतलब है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप किसी के दर्द को कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ तस्वीर बनाते हैं, बाज़ दफ़ा हम किसी के पेन को फील करते हैं, अपने समाज के लिए
یہ مطلب جیسے آپ دیکھیں نا کہ کچھ بھی رائٹنگ ہو, کسی طرح کی بھی تخلیق ہو, وہ ساری تخلیق آپ کی اپنے لیے نہیں ہوتی. بعض دفعہ وہ تخلیق آپ کے, چونکہ آپ جب دیکھو شاعر جو ہوتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں شاعر کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر پرسیپشن, آبزرویشن اور حساسیت جس کی بات ہے, اور پھر دوسری بات ہے اس کا خیال جو ہے, خیال اس کا ہوتا نا بلند ہو. لیکن ویسے ہم نے ابھی ساری باتیں نہیں نا بتا دینی, ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں, شاعری بھی چل رہی ہے, تو یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے بینا صاحبہ سے ہی, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. شاعری کسی محبوب کی محبت کا پتہ دیتی ہے. یہ محبت کیا ہے, اب ہم یہ احمد حماد صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ ان کی جو شاعری ہے نا وہ اسی قسم کی ہے. جی احمد حماد صاحب ذرا بتائیے گا. ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی, شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ. تو جو ایک آگ ہمارے اندر ہے وہی محبت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہمارا محبوب ہے وہ حسین نہیں ہے, ہمارا خیال حسین ہے. ہم نے اس خیال کے ساتھ اس کو پینٹ کیا, اور جب وہ اس کی تصویر ہمارے دل پہ بنی تو وہ زیادہ خوبصورت تھی. اب بھلے آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائیں, ہم جس کی پوجا کرتے ہیں اصل میں حسن وہ ہے. تو یہی محبت ہے. محبت دراصل اپنے آپ کو, میں اگر اس کو ون ورڈ ڈیفینیشن اس کی کروں تو یہ سبمیشن ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں, اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں. پھر ہم جو ہمارے فرش شاہ صاحب کہنا, ہم جو جی سے چاہو یار کرو, ہم پڑ جو گئے تیری راہ پیا. تو تمہارے رستے پڑ گئے, آپ ہمیں ہمارے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاؤ, بھلے ہمارا سر کچل جاؤ, بھلے ہمارا دل کچل جاؤ. تو یہ ہوتا ہے شاعر کا کہ وہ بس محبت جسے کرتا ہے نا, وہ اس کے سامنے اس کو اپنا آپ سپرد کر دیتا ہے. بالکل اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے اس کو, ایسی اس کے لگن ہوتی ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر اختر شمار صاحب, آپ کی شاعری میں بہت زیادہ محبت کا آپ نے جو ذکر کیا, آپ کی موضوع ہی آپ نے اس کو بنایا, تو آخر کیا آپ کی پیچھے اس کی پیچھے موٹیویشن ہے, محبت کو ہی کیوں چوز کیا؟ وہ آپ دل توڑنے کی اور وہ جو باتیں کر رہی تھی, تو میں اپنی ایک پرانی غزل پیش کرتا ہوں کہ میرے دل سے سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, میرے دل سے سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اسے بھی توڑنے کو ایک کھلونا چاہیے تھا, اسے بھی توڑنے کو ایک کھلونا چاہیے تھا. بہت شوقین تھا یہ دل سمندر کے سفر کا, اسے تو گہرے پانی میں ڈبونا چاہیے تھا. بہت شوقین تھا یہ دل سمندر کے سفر کا, اسے تو گہرے پانی میں ڈبونا چاہیے تھا. کہاں یہ گوشے گوشے میں لیے پھرتی ہے گردش, کہاں یہ گوشے گوشے میں لیے پھرتی ہے گردش, مجھے تو بیٹھنے کو ایک کونا چاہیے, بہت اچھے, مجھے تو بیٹھنے کو ایک کونا چاہیے تھا. اور کہاں ہیں وہ میرے احباب آخر سب کہاں ہیں, انہیں مشکل میں میرے ساتھ ہونا چاہیے. کہاں ہیں وہ میرے احباب آخر سب کہاں ہیں, انہیں مشکل میں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ ممکن تھا وہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیتا, یہ ممکن تھا وہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیتا, مجھے اس سے لپٹ کر ایسے رونا چاہیے. بہت اچھے. اور وہ آتا یا نہ آتا خواب میں وعدے مطابق, مجھے لیکن شمار اس رات سونا چاہیے. میرے دل سے سلوک ایسا ہونا چاہیے تھا, اسے بھی توڑنے کو ایک. یہ اس زمانے کی وہ یادوں کی بات آپ کر رہی ہیں. تو ایک عمر میں یہ اس طرح کے موضوعات ویسے تو یہ چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ خاص طور پر ایک خاص جذباتی عمر کی باتیں ہیں. ایک خاص عمر کی بات ہے. محبت اور دل شکستگی, اس پہ مجھے اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر, اس کے بعد ذرا بینا میڈم سے, کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. جس بندے کو دل ٹوٹنے کا احساس نہیں ہو سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا. بھائی محبت ان لوگوں کا کام ہے جو نازک دل ہے. بالکل. بینا صاحبہ ویسے یہ صلاحیتیں جو ہیں کیسے
पहचाननी चाहिए कि आप लिखती हैं, शायरी भी करती हैं, तो वैसे ये लगन इसके लिए होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, लगन तो बहुत ज़रूरी है। देखें, लगन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जैसे भी मोहब्बत की बात चल रही है, तो उसमें मैं उसी ज़माने की थी, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, वाह, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे। अब ये मुझे ये बताइए कि ये फीलिंग्स, आई कैन नॉट ब्रिंग दीज फीलिंग्स नाउ डेज, यू नो, मैं ये लेकिन भी रेलिवेंट है, मतलब ये आप उसी तरह जवान हैं, टीनेजर हैं, अभी भी रेलिवेंट है। लेकिन ज़हनी वो जो हमारी वो एक है, वो तो हमारी यू नो लाइक वो चेंज होती है, हम खुद भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें जैसे आपका सवाल है, उसमें मैं समझती हूँ कि इंसान जो है उसके वो एक पहले इनफरादी अपनी प्रॉब्लम्स को लेता है, फिर उसके बाद जैसे अमाद ने कहा, फिर उसके बाद वी आर लाइक कलेक्टिव, इज्तिमाइयत का जब हम आते हैं, चूँकि यही हमारी ग्रोथ है। चूँकि आप पहले एक घर में रहते हैं, फिर एक फ़र्द होते हैं, फिर उसके बाद वो आप मुआशरा बनाते हैं, और ये जो तंजीम का हवाला होता है, फिर जब आप बहुत बड़े शायर क्यों होते हैं, फिर वो आफाकियत जो आती है आपके अंदर, या फिर आपके ग्लोबलाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट आता है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वी हैव टू, पोइट्री को भी साइंटिफिकली अगर एनालाइज किया जाए, मैं इसलिए आपसे ये बात करती हूँ क्योंकि देखें, गालिब ने कहा था, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अब उसका देखें, ये आज हमें पता चलता है, जो सितारा टूट जाता है 4.5 साल तक, वो सितारा आसमान पे चमक रहा है, लेकिन हमें तो वो सितारा जो है वो चमकता नजर आता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, बेवफा से वफा निभाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी। एक कॉलर है हमारे साथ, मंजूर मलेशिया से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। जी बिल्कुल। चलिए जी, मीना साहिबा, आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था, आपको और आपकी सारी टीम को, जुल्करनैन भाई को भी और इकरा को भी, कि ये खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, लोग एंजॉय करें। लोग कह रहे हैं आपने माहौल बना दिया, तो हमारी पंजाबी रहतल बहतल में माहौल बनाना एक खास उसका एक पर्सपेक्टिव है। शायरों को सुबह उठाना भी बड़ी बात है, और उनसे मुशायरा करवाना, ये शायर उठते नहीं है सुबह। ओह माय गॉड, शायर देखिए रात को वो मुशायरा करके लिख के, क्योंकि हम लोग जो है हमारा लिखने का रातों का काम है, ये दिन का काम नहीं है। चूंकि जब तक आप उस पीस ऑफ, एक स्टेट ऑफ माइंड है, यू मस्ट हैव टू बी स्टे इन दैट माइंड एंड देन यू कैन राइट। मैं 10-10 दिन बाज़ दफ़ा सोचती हूँ मुझे एक लाइन लिखनी है, नहीं लिख सकते, लेकिन बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि वी हैव टू रश टू द होम। अच्छा, ये जो कहते हैं आमद हो रही है, ये तो क्या ये होता है? तो ये वाकई में आमद ऑफ कोर्स, ये मेरे ख्याल में हम कोई, देखें, मैं कोई और काम नहीं कर सकती लिखने के अलावा, कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जो कुछ मर्जी हो। मैं आज बल्कि अभी बैक रूम में कह रही थी अपनी बच्चियों से, यहाँ पे मैंने कहा, देखें, अगर मैं राइटर ना होती तो मैं एक ब्यूटी पार्लरिस्ट होती, क्योंकि हमने फनकार बनना ही बनना था, ब्यूटिशियन होती। अभी आपको प्रोग्राम देख रहे थे, तो यू नो लाइक दिस इज एन आर्ट, क्राफ्ट के साथ ये आर्ट भी है, क्योंकि ये तख्लीक है। इसमें आपके अंदर से जो एक तख्लीक मीन्स इट्स लाइक प्योरिटी, आपकी अपनी शनाख्त है, जो आपके अपने तखय्युल की परवाज़ है। चूँकि वो देखें, लफ्ज़ जो हैं वो अपनी एक स्टेटमेंट बनाते हैं, पूरी ड्रॉ करते हैं, और वो स्टेटमेंट जो कोई और चीज़, वो लफ्ज़ वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन अगर अख्तर शुमार या मैं या अमाद या कोई शायर, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वो अगर वो उनकी ज़बान से वो लफ्ज़ निकलता है तो उसके मानी डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके मानी उसके अंदर हैं, और वो मानी का मतलब तब होता है उसको जिस तरतीब में आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में शायरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप उस लफ्ज़ों का इस्तेमाल किस तरतीब से और कहाँ पे कर रहे हैं। रात और शायरी के हवाले से ना, मियाँ साहब का एक, मियाँ मोहम्मद बख्श का, उन्होंने एक शेर का मतलब ये है कि मोमबत्ती, शमा और शायर, इन दोनों में कई चीज़ें कॉमन हैं। दोनों रात को जलते हैं, दोनों के सर पे आग लगती है, यानी इंसान यहाँ पे दिमाग सोची करता है, सोचता है, और दोनों दूसरों को रोशनी देते हैं। वाह वाह, शायर भी दूसरों को रोशनी देता है। इसी के साथ मैं आप ये इजाजत हो तो कॉल भी ले लूं। जरूर। एक कॉलर है जी, इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप क्या बात करना चाहेंगे? कोई शेर सुनाना चाहेंगे? आज जो माहौल बना हुआ है, चार मिसरे हैं, वो सुनाना चाहूँगा, और इन सबको। जी जी, जबरदस्त, सुनाए। इश्क दी अग पकावे जिसनू कदों और रहिंदे कच्चे, वाह। इश्क दी अग पकावे जिसनू कदों और रहिंदे कच्चे,
खासा दी गल आमा ताई लाज पछे ना जचे वाह वाह मर्दा हथ मैदान सदाई कौल जिन्हां दे सच्चे वाह बुल्ला कदे भी नचिया नाही भुले लोग ही नचे। वाह वाह, शुक्रिया जनाब। जबरदस्ती, वाह वाह, बड़ा खूबसूरत शेर मैं सुना इसके है। ऊपर बल्कि मुझे एक याद है, एक गूंगी मसीदा डिठी है, हाँ। अभी चूंकि पंजाबी का है, एक गूंगी मसीदा डिठी है जिते चुप भी शायद तो मिठी है। तो शायरी की जो ज़ुबान है ना, ये कितनी मिठी होती है कि अगर शायर बैठा हो ना तो आपको उसके, मैं ये समझती हूँ कि उसकी हसासियत, उसके चेहरे के, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बयान कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस पेन में। चूँकि देखें मैं, और ये नहीं कि पूरे माशरे में उसकी अक्कास आपको नज़र आता है, चूँकि जो जब कोई चीज़ काम नहीं करती फिर शायर की ज़बान काम करती है। हबीब जालिब का हम जिक्र जैसे मतलब हम करते हैं, तो जैसे हबीब जालिब साहब और इस तरह के बहुत, मतलब मैं समझती हूँ कि अभी आपने कहा है कि दर्द का होना, तो वो दर्द होना, और आम तौर पे ये जो भी हम कह रहे थे कि ये जो शायरी है ना, ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होती, ये घाटे का सौदा होती है क्योंकि हम लोग इससे कुछ कमा नहीं सकते, लेकिन जो कमाते हैं वो कमाते हैं कि हमारी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना, क्योंकि वो जो वही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि देखिए फायदे माहौल बना है, हमारे कॉलर भी बड़े एक्टिव हैं, बड़ी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, वो भी शेर सुनाना चाह रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है जी तैमूर आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तैमूर साहब, आप भी कोई शेर सुनाना चाह रहे हैं, माहौल का फ़ायदा उठा रहे हैं सभी आज? जी मैं तो सुना तो कुछ नहीं सकता, लेकिन अच्छा। ये है कि मैं डॉक्टर कशमार साहब का कलाम जरूर सुनना चाहूँगा जी। जी जी चलिए जी, ठीक है, हम आपकी फरमाइश पे सुन लेते हैं भी डॉक्टर अख्तर शुमार साहब से कोई भी शायरी वगैरह, तो अभी सुनेंगे, लेकिन एक और कॉलर भी ले लूँ। चलिए जी, एक और कॉलर है हमारे पास, मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैं एक शेर सुना देता हूँ छोटा जी सा। जी सुनाएं। वो हमारे शाकिर सिजाबादी हैं सराइकी, वो उनका शेर है। ए पाकिस्तान के लोगों हाँ सर, पलीते को मिटा दे वो, ए पाकिस्तान के लोगों पलीते को मिटा दे वो, नताजा ए ना रखे ए ना हूँ को गला दे दे। मकसद ये है कि उर्दू भी शायद आप समझ गए होंगे, उर्दू मैं भी कह देता हूँ। जी जी मंजूर साहब कहिएगा। सराइकी में इन्होंने, इसका मतलब सराइकी उर्दू। चलें जी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन डॉक्टर अख्तर शुमार साहब आपके लिए आई है जी, एक फरमाइश आई है, वो कह रहे हैं कि जी आपसे सुनना चाहते हैं शायरी। जी मैं एक मेरे यंग लोगों के लिए एक बहुत पुरानी कि तुझे जो देखूं तो मुझसे कहे ये मेरा जुनूं, सुभान अल्लाह, मैं अपनी जान हथेली पे तुझको पेश करूं, वाह वाह वाह, मैं इस कदर तुझे जी भर के देखना चाहूं, वाह मैं इस कदर तुझे जी भर के देखना चाहूं, तू मेरे सामने हो तो कभी मैं सांस न लूं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तू पलकें झुकाए तो आसमान झुके, अगर तू पलकें झुकाए तो आसमान झुके, सुभान अल्लाह, नजर उठा के जो देखे तो मैं जहां से उठूं, वाह भी वाह, बहुत अच्छे। बहुत ही खूब। नजर उठा के जो देखे तो मैं जहां से उठूं, सुभान अल्लाह, वो तेरे कांच के चूड़े की नगमारेज खनक, वो तेरे कांच के चूड़े की नगमारेज खनक, भाई क्या अच्छा, मैं पिछली शब के सितारों की टोली में सुनूं, बहुत क्या अच्छे, अच्छा है। बहुत अच्छे। मैं पिछली शब के सितारों डॉक्टर की साहब सुभान टोलियों में अल्लाह, क्या सुनूं, अच्छा शेर है। बाहर आए बड़े दिल की बेकरारी जब, मैं दिल का हाल तेरे गांव की हवा से कहूं, वाह वाह, किसी मज़ार पे जलते हुए दिए की तरह मैं एक उम्र उदासी के दरमियान रहूं, बहुत अच्छे। मुझे ये हुक्म हुआ है मेरे ही दिल से शुमार, मैं तेरे हिस्से के दुख भी तमाम आप सहूं, बहुत अच्छे। मैं इस कदर तुझे जी भर के देखना चाहूं, बहुत अच्छे। तू मेरे सामने हो तो कभी वह सांस न लूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बहुत शायरी। अच्छा। यकीनन जब फरमाइश हम लोगों को भी उस फरमाइश का फ़ायदा हुआ है कि इतनी खूबसूरत शायरी सुनने को मिली है। मीना साहिबा, आज के जो नौजवान शायर सामने आ रहे हैं और शायरी कहते हैं करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त कम है, हम कह रहे हैं बस जल्दी से। ये मैं समझती हूँ कि जो अगर शायरी
کر رہے ہیں تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. چونکہ دیکھیں شاعری اور ادب سے ہم اپنے معاشروں کی جو ترتیب دے سکتے ہیں وہ کسی اور میدان میں نہیں دے سکتے. اور جو آج کا موجودہ دور کا شاعر ہے, نوجوان ہے, وہ ظاہر ہے کہ آج کے موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے, ان کی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ان کو حل ڈھونڈ سکتا ہے. اور وہ جو شاعر کی نظر ہوتی ہے وہ باطن میں بھی اور ظاہر میں دونوں میں اس کی اپروچ ہوتی ہے. جہاں پہ ہمارا ایکس ریز کام کرتے ہیں اسی طرح شاعر کی نظر کام کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دے ہیو ٹو کیپ اٹ اپ. احمد حماد صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کی نوجوان نسل کو؟ میں بس یہ کہوں گا کہ اپنے آپ پہ اعتماد کریں, لیکن جیسے ٹی ایس ایلیٹ کا ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ, یہ اس کا بڑا مشہور مضمون ہے. اس نے یہ کہا کہ گریٹ ماسٹرز کو ضرور پڑھیں تاکہ ری انوینشن آف دا ویل کے چکر میں نہ پڑ جائیں. ہو سکتا ہے جو آپ شعر کہہ رہے ہوں آپ سے کہیں اچھے انداز میں کسی استاد نے کہہ رکھا ہو, تو آپ کہیں اس کو ریپیٹ نہ کر دیں. اس لیے جو بھی شاعر بننا چاہتا ہے اپنے پہ اعتماد تو کرے, شاعری کرے, لیکن تمام بڑے اساتذہ کو ضرور پڑھ لے. کم از کم 20 بڑے اردو شعراء کو تو ضرور پڑھے, ان کو سب مصطفی کے سارے دیوان پڑھے, میر کے پڑھے, غالب اقبال سب کو پڑھے. اسی طرح نظم کہنی ہے, راشد ہے, میرا جی ہے, مجید امجد ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, ان کو پڑھنے کے بغیر لکھنا یہ ری انوینشن آف دا ویل ہی ہے. زبردست. ویسے بھی آج کل بہت سے لوگ شاعر بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فیس بک اٹھا لیں یا سوشل میڈیا پر کوئی بھی پیج اٹھا لیں تو ہر آدمی نے کسی کا بھی شعر اپنا نام اس میں لگا کے, فراز, اقبال یا کوئی بھی, تو اس کا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ٹھیک ہے, ایک ودیت تو ہے, لیکن اس کے اسرار و رموز ہمیں سیکھنے چاہیے. بالکل, یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, تب بھی ہم اچھی شاعری پھر جا کے سیکھے بغیر نہیں, ورنہ تک بندی ہے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر اختر شمار صاحب آپ کا, احمد حماد صاحب آپ کا, بینا گوندی صاحبہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 9 سے 11. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.